concerned, you have to go with this 8086 microprocessor and its application by A Nagurkani. by A Nagurkani. इसका सॉफ्ट कॉपी मैंने ई बुक बोल के शेयर किया क्लासरूम में. तो ये एज फार एज दिस मॉड्यूल इज कंसर्न, यू प्लीज गो थ्रू दिस बुक, गो थ्रू दिस नोट. हाँ सर बीबी ब्रे से करेंगे तो नहीं चलेगा ये वाला मॉड्यूल? चलेगा चलेगा, बट वॉट एवर आई एम टेकिंग हियर ना, आई विल बी रेफरिंग माय दिस नागुरकानी. आई विल बी रेफरिंग, सी कौन सा भी बुक रेफर करो, देयर इज नो प्रॉब्लम. जरा सा यहाँ से वहां जरा सा चेंजेस होता है. ओके वो क्या चेंजेस है, आई विल जस्ट लेट यू नो व्हाट आर द चेंजेस. तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं, यू कैन गो विद ब्रे आल्सो, देयर इज नो हार्म. Okay, so we'll start with this now. I want everyone to write down the heading as instruction set of 8086. Instruction set of 8086. Instruction set of 8086. Instruction set of 8086. Now, in this instruction set of 8086, we'll be talking about how do you write down the instructions, what are the specific format of writing down the instructions. Okay. Also, we'll be able to understand that these instructions are classified into different groups. Are classified into different groups. ये groups करना जरूरी है, because हम group नहीं करते तो it is like jumbling of all the instructions. तो हमको समझ में नहीं आएगा कि actually मुझे ये अगर टास्क करना है तो आई शुड टेक द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम विच ग्रुप. तो अगर हम ग्रुप करके रखते हैं तो इट इज फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड ऑल द इंस्ट्रक्शन, बिकॉज देयर आर मेनी इंस्ट्रक्शंस इन 8086. हम हर इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ने वाले. ओके, बट देयर आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग इंस्ट्रक्शंस व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड. अगर हम पूरे इंस्ट्रक्शंस को अगर हमको देखना है तो हम वी कैन जस्ट सी द जनरल व्यू. सो दैट्स व्हाई दीज इंस्ट्रक्शंस आर categorized or they are grouped into different categories. Okay, they are grouped into different categories. हम जब ग्रुपिंग करते हैं और बाद में हम देखते हैं कि वो ग्रुप में क्या है, ये ग्रुप में क्या है, तो व्हाट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू नाउ, दिस विल बी इन जनरल. नाउ दिस विल बी इन जनरल. उसके बाद भी हम स्पेसिफिकली जाएंगे. देन विल गो स्पेसिफिकली, जो हमको हमेशा लगते हैं एंड विच आर मोस्टली वाइडली यूज्ड और विच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड. ओके, सो द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8086, as far as the instruction sets of 8086 is concerned, I can group this into 6 categories. I can group this into 6 categories. So first I want you to write down the category 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, and in the same category we'll be writing down few sentences to understand कि वो group में क्या हो रहा है. And this is very easy. This is very easy कि वो group में क्या हो रहा है. उसका नाम ही पढ़ेंगे आप तो आपको समझ में आएंगे कि what actually happening in that group. ओके, और वो ग्रुप में कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे. सो द फर्स्ट वन यू कैन जस्ट राइट डाउन इंस्ट्रक्शंस. 8086 instructions can be classified into following 6 groups. Number 1, 8086 instructions can be classified into following 6 groups. Number 1, data transfer instruction. Data transfer instruction. अभी यही ग्रुप में आई वोंट बी गिविंग यू कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो अलग से हम पढ़ने वाले, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द जनरल मीनिंग और व्हाट इज द डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे क्या होता है. ओके, सो एज द नेम सजेस्ट इट इज अ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन. Now, as the data transfer means, if I want to transfer the data, now you know that your data can be in the memory, your data can be in the register, okay, it can be in the IO devices. So if I want to transfer the data, because you know, whenever I have to do some operations on the data, I have to bring the data which is present in from the memory, I have to bring that data, then that data is moved into the BIU, from BIU it goes to EU, and in the EU you actually do the operation. So this data transfer instructions will be available here. All the data transfer instructions will be available here. Okay, so just write down 1 sentence, 2 sentences on this. The date we'll write in short. This group includes instructions
This group includes instructions for moving data between registers, comma, between registers बोले तो register to register, ये हम सब देखेंगे in detail. Okay, between registers, comma, register and memory. आपको पता है मेमोरी में डेटा रह सकता है. Now here register can be, if you remember in the EU we have drawn AX, BX, CX, DX. So these are treated as a register. तो मेमोरी से रजिस्टर में लाना या रजिस्टर टू रजिस्टर, कॉमा, बाद में आप लिखो रजिस्टर एंड स्टैक मेमोरी, कॉमा, and accumulator and IO device, accumulator ACC, यहाँ पे लिखा है मैंने accumulator and IO device, because my data can be available in the IO port, input output device. वहां से अगर मुझे लेना है, okay, so that data will be from IO device to accumulator, and mostly the accumulator is nothing but your AX. That is a specific register which is used. Okay, this is a specific register which is used. So whenever you talk about this particular accumulator, it is mostly associated with AX, या फिर आप बोल सकते हो that is AH, AL or AH, because आपको पता है AX consists of AL या फिर AH. Okay, so accumulator की कभी भी बात आएंगी, you have to know that I am talking about AX or AL or AH. That is the meaning of this. Okay, so you have written for the first group, write down the second now. This is in general, ये सब general है, लेकिन ये भी important है, क्योंकि हम जब instructions पढ़ेंगे तो I will be asking you, tell me that this instruction will fall into which group. You have to give me the answer for that. Second one, it is arithmetic instructions. Arithmetic instructions. ये नाम से समझ में आता है कि क्या है ये arithmetic instructions. Okay, arithmetic instructions, obviously the instructions which are associated with addition, subtraction, multiplication, division. Okay, so all the instructions which are related with these arithmetic operations will fall into this category, that is arithmetic instructions. So just write down one sentence on this. It includes instructions for addition and subtraction of binary, comma, BCD. हम बाइनरी एडिशन ही नहीं कर सकते, हम इसमें BCD एडिशन भी कर सकते हैं, and you are familiar with BCD, digital electronics. Okay, BCD and ASCII data, ASCII, ASCII data, comma, and instructions for multiplication and division of, signed and unsigned binary data, signed and unsigned binary data. तो हम देखेंगे जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का जब इंस्ट्रक्शंस विल बी गोइंग थ्रू, विल अंडरस्टैंड what is signed and unsigned. It is clear. When your MSB is 1, it is a negative. When MSB is 0, it is a positive. Okay, so that is unsigned and signed. That is signed and unsigned. Okay, signed and unsigned. So this is your second. Go with the third one. Third one is logical instructions. The third one is logical instructions. As the name suggests, AND operation,
or operation, exclusive or, complement, shift, rotate, etc. All these instructions will come into this category. Logical. Okay, logical instructions. So write down instructions, or write down logical operations like and, comma, or, comma, exclusive or, comma, complement, comma, shift, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी लॉजिकल में आता है. शिफ्ट, कॉमा, रोटेट, राइट रोटेट, लेफ्ट रोटेट, वो सब इंस्ट्रक्शंस हम सीखने वाले. ओके, रोटेट एक्सेट्रा. ठीक है. सो दिस विल कम अंडर द थर्ड वन. द फोर्थ वन, that is string manipulation instruction. 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 Now pay attention, this is the fourth category, string manipulation. इसमें क्या होता है? We are not dealing with the numbers, but we are dealing with the letters or the character or the word. So if you talk about the letters, we are talking about the string. We are talking about the string. So whenever I have to do some manipulations on the string, for example, if I want to compare bit by bit of two strings, comparison of two strings, bit by bit, or word by word, or byte by byte. So that is an example in which I will be manipulating the strings. I will be working on the string. So whatever the string manipulation instructions are there, they will be associated with this fourth category, that is string manipulation instruction. So you can just write down for one sentence on this. This includes instructions for moving. This includes instructions for moving string data between two memory locations. For moving string data between two memory locations, and comparing string data word by word or byte by byte, and comparing string data word by word or byte by byte. Fifth one now. This is control transfer instruction. Control transfer instruction. Now this is important. Let me explain you what is a control transfer instruction. Now control transfer instruction is associated with your instruction pointer. All of you, please pay attention. This is important. I will rub this. इसके related instructions I will be taking separately, but you should know what is the control transfer. Control transfer हो रहा है. कौन किसका control? The processor control is getting transferred. Okay. For example, जैसे already I have explained you. Okay. Now this is my main program. In the main program, I am having 5 instructions. Suppose 1, 2, 3, 4, 5 instructions are there. Already I have explained you this. Okay. Now I am executing the first instruction, the second, then the third. 3 instruction execute हो गए. लेकिन third के बाद there is interrupt. Or in this third instruction itself, this is a conditional instruction. Suppose this third instruction is conditional. कि अगर ऐसा होता है तो मुझे जंप करना है, अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे जंप नहीं करना है. अगर ये थर्ड है, while executing this third and it happens that I have to jump to some other program. I am jumping to some other program.
Now here also there are some instructions now, because this is a main program and this is called as a subroutine now. This is called as a subroutine. This is a normal routine or the main program and this is called as subroutine. तो jump अगर होता है मैं, whenever I am jumping from main program to the subroutine program, this can be a conditional jump or unconditional. This is important. ये conditional भी हो सकता है या unconditional भी हो सकता है. So whenever I am jumping, that means the control of the processor has been transferred. The control has been transferred from the main program to the subroutine program. और यहाँ पे एग्जीक्यूट होने के बाद वो फिर से यहाँ पे आने वाला है, फोर्थ लाइन पे आने वाला, थर्ड होने के बाद, एग्जीक्यूट होने के बाद इट विल कम बैक टू द फोर्थ and which will have normal operation in the main program. So this particular transfer of the control is the part, or these are the instructions in which you will be seeing there is a transfer of the control of 8086. तो इसलिए ये कैटेगरी में कौन से इंस्ट्रक्शंस है जो प्रोसेसर के कंट्रोल को ट्रांसफर करते हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन. सो प्लीज राइट डाउन वन सेंटेंस ऑन दिस. This group includes instructions. This group जो लिख रहे हो वो भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो यू प्लीज आस्क मी. ओके, वॉट एवर आई विल बी गिविंग इन द डिक्टेशन दैट इज एसोसिएटेड विद व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग. तो नहीं समझ में आया तो यू शुड आस्क मी. आपने लिखा है दिस ग्रुप इंक्लूड्स इंस्ट्रक्शंस टू कॉल अ प्रोसीजर स्लैश सब रूटीन. इसको हम सब रूटीन बोल सकते हैं या फिर एक प्रोसीजर बोल सकते हैं. ओके, यू कैन हैव डिफरेंट नेम्स टू दिस पर्टिकुलर subroutine or small program. So you have what you have written to call a procedure slash subroutine in the main program. In the main program, ये देखो, in the main program. मेन प्रोग्राम में हम उसको कॉल कर रहे हैं, मेन प्रोग्राम में हम उसको कॉल कर रहे हैं. ओके, so that is why in the main program. Full stop. It also includes instructions to jump from. It also includes instructions to jump from one part of a program. It also includes instructions to jump from one part of a program to another part, either conditionally. Conditionally लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखो आफ्टर चेकिंग फ्लैग्स. आफ्टर चेकिंग फ्लैग्स, और आफ्टर चेकिंग फ्लैग्स को अंडरलाइन करो. दिस इज इंपॉर्टेंट ना, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है. आफ्टर चेकिंग इंस्ट्रक्शन. तो हम जब कंडीशनल जंप करते हैं तो वी आर एक्चुअली चेकिंग द फ्लैग्स, और फ्लैग्स के स्टेटस के हिसाब से मुझे जंप करना है नहीं करना है वो डिसाइड होगा. तो कंडीशनली जंप अगर मुझे करना है तो इन दैट केस ऑलवेज यू विल बी चेकिंग द फ्लैग. Status flag, zero flag, parity flag, auxiliary carry flag, directional flag. Okay, so there are many flags. तो हमको वो फ्लैग्स के स्टेटस देख के ही हमको जंप करना है नहीं करना है वो डिसाइड करना है. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. ब्रैकेट क्लोज. और अनकंडीशनली ब्रैकेट में वही लिखो विदाउट चेकिंग फ्लैग्स. Without checking flags. ठीक है. तो अनकंडीशनली रहा तो मुझे फ्लैग्स की जरूरत नहीं, फ्लैग्स में कुछ भी चेंजेस होने दो. आई डू नॉट केयर, आई हैव टू जंप बिकॉज इट इज अनकंडीशनल जंप. लेकिन कंडीशनल में मुझे फ्लैग्स चेक करने पड़ते हैं, और कंडीशनल में मेंशन रहता है कि वो फ्लैग्स में से कौन सा पर्टिकुलर फ्लैग को मुझे चेक करके जंप करना है. देखो, जंप ऐसे भी हो सकते हैं कि अगर कैरी फ्लैग 1 हुआ तो इफ कैरी जनरेटेड, so I need to check carry flag in this particular status flag. Okay, so your jump will be, you will be jumping whenever you will be having C is equals to 1. C is equals to means your carry generated. That is an example I have given for this particular after checking flag. Okay, so this is your fifth one, and the last one now. The last one. That is
processor control instruction. Processor control instructions. Number 6. Processor control instructions. Processor control instructions. Now processor control instructions वही नाम बता रहा है, in which the processor is going to control something. Okay, so just write down, you will understand this. This group includes instructions. This group includes instructions to set or clear the flags. To set or clear the flags, comma, to set or clear the flags, to clear the flags, comma, to delay and halt the processor execution, to delay or halt processor execution. So whenever your status flag is reflected depending upon some operations, क्योंकि ऑपरेशन कुछ होगा तभी तो स्टेटस फ्लैग में चेंजेस आएगा. मैंने टैजम में बताया था, टैजम में मुझे एडिशन करना था तो एडिशन के हिसाब से कुछ फ्लैग चेंज हो रहे थे. कहीं पे अगर ओवरफ्लो हो सकता है, कहीं पे पैरिटी जनरेट हो सकती है, कहीं पे कैरी फ्लैग जनरेट हो सकता है, कहीं पे ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हो सकती है. तो ऑपरेशंस के बाद ही आपका स्टेटस फ्लैग में चेंजेस होगा. वो चेंजेस होने के बाद उसको सेट करना है या फिर क्लियर करना है. नाउ हियर इट कैन बी एनी फ्लैग. ओके, जैसे इंटर फ्लैग, इफ यू रिमेंबर एक इंटर फ्लैग भी था. कोई भी अगर इंटरप्ट कर रहा है आपके 8086 को तो योर इंटरप्ट फ्लैग दैट इज IF विल बी सेट. और वो सेट होने के बाद उसको मुझे 0 तो करना है ना, उसको मुझे क्लियर तो करना है. तो ये कौन करेगा? आपका प्रोसेसर. आपका प्रोसेसर. तो इसलिए टू सेट और क्लियर द फ्लैग यू हैव अ डेडिकेटेड इंस्ट्रक्शन. You have a dedicated instruction which is run by the processor. So that's why it's called as a processor control. और अगर मुझे कुछ डिले लाना है या फिर हॉल्ट करना है एग्जीक्यूशन, ओके, आपको पता है वेट स्टेट. I have already told you about the wet state. So whenever such condition arises where I have to halt or where I have to have some delay, so that for that also I have a specific instruction, or that is run by this processor. Okay, so that is why this is called as a processor control instructions. So we have done with this particular instructions or the groups. We have gone with the instruction groups. Now we'll be going with the addressing modes of 8086. Now write down the heading. I hope you don't have any problem till now, because this is not so difficult to understand. Now we'll go with the addressing modes of 8086. So please write down addressing modes of 8086. Addressing modes of 8086. Addressing modes of 8086. This is very important now. So gradually we are going into the instructions to understand the instructions. Okay, लेकिन actually वो instructions में जाने से पहले हमको देखना है कि addressing modes of 8086 क्या है. We have to understand what is this 8086. Okay, what is this 8086 addressing modes? What are the 8086 addressing modes? Pay attention, कुछ मत लिखो. First pay attention, जब लिखना है I will be telling you when to write down. Now whenever you are performing any operation, we actually require the operands. We require operands. I'm writing down here operands. Now operands is nothing but the data. It is the data. And this data can be available either in the memory
or in the register or in the IO device. ओके आपका जो डेटा आपको जो जिसपे ऑपरेशन करना है, that data can be available in the memory, it can be available in the register or it can available in the IO device. ये तीनों के बजाय के सिवा कहीं पे नहीं रहता वो. ओके either of these three. So I have told you that your operands can be the data. Now suppose if I want to add two numbers, okay, जैसे मैंने लास्ट लिया था कि 08 प्लस 0A, अगर ये दोनों को मुझे ऐड करना है, पहले बात तो ये कितने बिट का है, दिस इज 8 बिट, ये कितने बिट का है, ये भी 8 बिट का. ओके नाउ दीज डेटा OA and O8 they are called as operands. So how many or they are called as a data, they are called as a data. Now these data can be available in memory or it can be available in the register or it can be available in the IO device. So how do you address these data from the memory, from the register, from the IO device is nothing but your addressing modes. हम ये डेटा को कैसे एक्सेस करते हैं from memory, from register या फिर IO device is called as addressing modes. तो हम वो डेटा को कैसे एड्रेस करते हैं या फिर हम वो डेटा को कैसे एक्सेस करते हैं, वो एक्सेस करने के लिए what instructions I have to use. So everything is associated with the addressing mode. Okay, so we have to understand ki what different addressing modes I have or what different addressing modes of 8086 are there. So there are different addressing modes. Okay, so we have to understand that these data को जो हमको operations करने हैं वो data को हमको कैसे एड्रेस करना है, बिकॉज हम अगर वो डेटा को एड्रेस करेंगे तभी तो वो डेटा वहां से हमारे पास आएगा. कहाँ पे आएगा, हमारे प्रोसेसर के पास, सीपीयू के पास आएगा. और सीपीयू के कौन से सेक्शन में आएगा, वो बीआईओ के थ्रू ईयू में आएगा, क्योंकि ईयू में ही उसका ऑपरेशन होने वाला है. ओके, सो एड्रेसिंग इज इंपॉर्टेंट, हम उसको कैसे एड्रेस करते हैं. ओके, सो फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग. whenever you have to write down the instructions, you have source and the destination. For example, अगर मैं लिखता हूं, मैंने आपको पहले बताया ये add, suppose I am writing down AL, BL, add AL, BL. इसका मतलब BL रजिस्टर में जो डेटा है और AL रजिस्टर में जो डेटा है वो दोनों को ऐड करो और AL में स्टोर करो रिजल्ट. आई एम रिपीटिंग अगेन, एड AL, BL का मतलब होता है कि BL में रजिस्टर में जो कंटेंट डेटा है और AL रजिस्टर में जो भी डेटा है वो दोनों को ऐड करो और जो भी रिजल्ट आएगा वो AL में स्टोर करो. ओके, इन दैट केस योर डेस्टिनेशन इज BL, क्योंकि आप एडिशन होने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो AL में आना चाहिए. सो योर डेस्टिनेशन इज AL. तो हु इज योर सोर्स? सोर्स इज BL एज वेल एज AL, दोनों भी सोर्स है. So your operands, that is data, is stored in BL as well as AL. So they both become source, and after doing the operation, your AL becomes the destination, because आपका जो result है वो AL में जाने वाला. Okay? दूसरा अगर एग्जांपल लेता हूं मैं, move. अभी मैं अगर add AL, BL कर रहा हूं तो मैं अगर आपको पूछूंगा ये कौन से कैटेगरी में आता है तो you will say सर ये आएगा अर्थमेटिक ऑपरेशन में. और अगर मूव की बात करूंगा तो मैं पूछूंगा ये कौन से कैटेगरी में आता है तो यू शुड से सर ये आता है डेटा ट्रांसफर कैटेगरी, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस. तो अगर मैं लिखता हूं मूव AL, BL, तो मूव AL, BL में क्या होता है, BL रजिस्टर में जो कंटेंट है वो मुझे AL रजिस्टर में ट्रांसफर करना है या फिर मुझे मूव करना है, ओके. So when I am executing move, in this case, who is the source? The source is BL, and who is the destination? AL is the destination. So the source register is BL, and the destination register is your AL. Okay.
और अगर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद, नाउ यू शुड नो बिफोर एग्जीक्यूशन व्हाट इज द स्टेटस, आफ्टर एग्जीक्यूशन व्हाट इज द स्टेटस. ओके, तो बिफोर एग्जीक्यूशन बीएल में एक डेटा है, सपोज एक्स डेटा है, और एएल में सपोज एएल में कुछ नहीं है, सपोज एएल में 0 0. So this is the status before execution. After execution, what is the status? AL will have now XX and your BL will be vacant, or it will be having some garbage value. Okay, I will assume it is having now YY. Again I am saying BL का जो डेटा है वो AL में आने के बाद BL में रह सकता है any garbage value, और या फिर 0 0. I do not know after the data transfer. There may be 0 0, there may be any garbage value YY. So for every instruction you should know before execution of the instruction what is the status of the BL register and AL register. After executing of this instruction the status of AL register and BL. जो हम देखते हैं ट्राइजम में, वो लास्ट जो राइट साइड का जो विंडो है ना जिसमें पूरे रजिस्टर्स है, वो स्टेटस होता है, वो स्टेटस वो कंटेंट बताता है once the program is executed. Okay, so you have to understand BL is the source and AL is the destination as far as move AL comma BL is concerned, this instruction. Okay, तो अभी हमको एड्रेसिंग मोड्स में क्या देखना है, हमको एड्रेसिंग मोड्स में देखना है कि हम ये डेटा को किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं. ओके, हम ये डेटा को किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं. So for that you can just write down, if you want to write down you can write down this, ये लिखो, there is no harm, क्योंकि ये जो मैंने सिखाया वो आपको समझ में आना चाहिए कि सर ने ऐसा कुछ तो भी सिखाया था. So you can just write down this thing. Operand, that is data can be in the memory register IO device. If I am performing addition of two numbers, 8-bit numbers, now this is an 8-bit number, two 8-bit numbers, 0 is A is 8-bit, 08 is 8-bit, so 8-bit to 8 bits addition, to 8 bits addition. And you can just write down the example for that is add AL comma BL. So BL and AL is the source, and after executing AL becomes the destination. Move AL comma BL, in this BL data will be transferred into the AL. हमेशा ट्रांसफर ऐसा होता है, कभी ऐसा नहीं होता. अगर मुझे AL का डेटा BL में ट्रांसफर करना है तो मैं इंस्ट्रक्शन लिखूंगा मूव BL comma AL, move BL comma AL. Okay, if it is okay, shall I rub this? Sir, 1 minute. हाँ लिखो. Yes, sir. सबका हो गया? Yes, sir. Just write down 2 sentences on this addressing modes of 8086. Every instruction of a program has to operate on a data. Every instruction of a program has to operate on a data. Full stop. The method of specifying the data to be operated, the method of specifying the data to be operated by the instruction is called addressing. The method of specifying the data to be operated by the instruction is called addressing. Full stop. The 8086 has 12 addressing modes. The 8086 has 12 addressing modes. And they can be classified into following 5 groups.
8086 has 12 addressing modes and they can be classified into following 5 groups. Now, before I go with the different addressing modes, let me tell you one thing, that different books will mention, कहीं पे 8 addressing modes लिखा रहेगा, कहीं पे 7 लिखा रहेगा, कहीं पे 6 लिखा रहेगा, कहीं पे 12 है. Okay, so I am giving you 12 addressing modes to have the broad information about this. Okay, but out of this 12 will be dealing with the important 7 to 8 addressing modes. Okay, हम सभी नहीं करने वाले, but you should have the knowledge कि what are the 12 different addressing modes. Okay, एग्जाम में भी आते हैं तो you can write down 12. एग्जाम में अगर आता है तो you can just write down 12, but you can mention 7 to 8. या फिर आप 8 addressing modes लिख सकते हो और 8 को 8 explain करो. There is no harm. You will get full mark. Okay, तो 12 इसलिए मुझे बताना है आपको कि ताकि आपको एक जनरल ओवरव्यू समझ में आए in the broader sense. Okay, so what I will do, I can group these addressing modes into 5 different groups or categories. Okay, so I want you to just write down group number 1. पहले हम क्या करते हैं, हर एक ग्रुप के अंदर कितने एड्रेसिंग मोड्स है वो हम सब लिख देंगे और बाद में जो इम्पोर्टेंट 8 या 7 एड्रेसिंग मोड्स है हम वन बाय वन लेते हैं. ओके, so you can do one thing, you can just write down group 1 और ग्रुप 1 में कौन कौन से है ये मैं आपको अभी लिख के देता हूँ. So group 1, write down group 1. Group 1. In the group 1, please write down number 1. और एक काम करना, जो हम लोग 8 या 7 जो लेने वाले हैं ना उसको भी है ना आप टिक मार्क कर देना ताकि आपको समझ में आए कि ये हमको पढ़ना है और ये इंपॉर्टेंट है. ओके, राइट डाउन नंबर 1, रजिस्टर एड्रेसिंग. रजिस्टर एड्रेसिंग. नंबर 2, immediate addressing. Immediate addressing. Number 3, sorry, आपने कितना लिखा है? हाँ, आपने 2 लिखा है ना ग्रुप 1 में? यस. See here, in group 1 only 2 addressing modes are there, third one नहीं है. ओके, और ये दोनों को टिक मार्क करो. ये इंपॉर्टेंट है और ये हम अलग से लेने वाले. ओके, ये ग्रुप 1 का हो गया. अभी ग्रुप 2. नाउ ग्रुप 2. ग्रुप 2 में लिखो, अभी मैं कंटिन्यूएशन में लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन आपको पता है 1 और 2 ग्रुप 1 में है, अभी 3 वाला है ग्रुप 2 में. एंड थर्ड वन इज डायरेक्ट एड्रेसिंग. डायरेक्ट एड्रेसिंग. नंबर 4, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग. रजिस्टर indirect addressing. Register indirect addressing. Then number 5, based addressing. BASED, based addressing.
Sixth one, indexed addressing. Indexed addressing. Indexed addressing. Number seven, based index addressing. Based index addressing. Based index addressing. And this number 8 I'm writing down here. Number 8 I'm writing down here. String addressing. String addressing. String addressing. In this group 2, please tick mark 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 8 को tick mark नहीं करना है. So in group 2, how many we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total 6 are there. Out of these 6, we'll be dealing with 5. Okay, we'll be dealing with 5. Okay, so this is the group number 2. This is group number 2. Now comes group number 3. Group number 3. In group number 3, this is number 9. Number 9. That is direct IO port addressing. Direct IO port addressing. Direct IO port addressing. Direct IO port addressing. And number 10, indirect IO port addressing. Indirect IO port addressing. Now, group number 4. Group number 4. Group number 4. Number 11. Number 11. Relative addressing. Relative addressing. Relative addressing. And group number 5. Group number 5. Number 12, that is last one. Last one. This is implied addressing. Implied addressing. Implied addressing. Okay. So these are the different addressing modes, total 12. They have grouped into different 5 groups. Okay. हमने ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5 लिखा है, लेकिन हमने उसका नाम नहीं लिखा है, लेकिन अब अभी हम नाम लिखते हैं उसका. ओके. नाउ now you will be able to identify कि वो नाम क्या, वो नाम वैसा क्यों है. ओके. फॉर जहाँ पे आपने ग्रुप नंबर 1 लिखा है, ग्रुप नंबर 1 लिखा है, उसके बाद ब्रैकेट में लिखो, उसके बाद ब्रैकेट में लिखो. नाउ पे अटेंशन, इन ग्रुप 1 you have written only 2, that is register addressing and immediate addressing. Register addressing, immediate addressing. इसके कारण ग्रुप नंबर 1 का नाम है, write down in bracket, addressing modes for register and immediate data. 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 Okay. इसलिए वो दो नाम वैसे आए.
अभी ग्रुप 2 लिखा है, उसके बाद ब्रैकेट में लिखना है आपको। अब ग्रुप 2 में हमने देखा था टोटल 5 थे, वो थे डायरेक्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट, बेस्ड, इंडेक्स्ड और बेस इंडेक्स्ड। ओके, इसलिए इसका नाम है एड्रेसिंग मोड्स फॉर मेमोरी डेटा। एड्रेसिंग मोड्स फॉर मेमोरी डेटा, ये समझो। एड्रेसिंग मोड्स फॉर मेमोरी डेटा, पहला वाला था एड्रेसिंग मोड्स फॉर रजिस्टर एंड इमीडिएट डेटा, अभी है एड्रेसिंग मोड्स फॉर मेमोरी डेटा। ये हो गया ग्रुप नंबर 2। अभी ग्रुप नंबर 3 में क्या लिखना है ब्रैकेट में? अब ग्रुप नंबर 3 में 2 थे। ओके, एक कौन सा था? दैट इज डायरेक्ट आईओ पोर्ट एड्रेसिंग और ये इनडायरेक्ट आईओ पोर्ट एड्रेसिंग। तो आपको समझ में आएगा, दिस इज एड्रेसिंग मोड्स फॉर आईओ पोर्ट्स। तो ब्रैकेट में लिखो एड्रेसिंग मोड्स फॉर आईओ पोर्ट्स, एड्रेसिंग मोड्स फॉर आईओ पोर्ट्स। आई एम गोइंग वेरी स्लोली क्योंकि बहुत सारी चीजें याद भी समझनी चाहिए एंड यू हैव टू इमेजिन ऑलवेज। Instead of memorizing, it is best to imagine. Imagine and you will remember. Now group number 4, उसमें एक ही था, that is relative addressing। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो relative addressing mode, relative addressing mode। और 5th वाला जो लिखा था implied addressing, you can just write down implied addressing mode, implied addressing mode। तो हमने जो टिक मार्क किया था 1 2 3 4 5 6 7, these are the important, most important one। So we'll be taking only this 7। एग्जाम में भी आपसे 7 लिख के 7 एक्सप्लेन करो, there is no problem। या फिर 12 एक्सप्लेन कर, 12 मेंशन करके 7 एक्सप्लेन करो, there is no problem। Okay, so we'll go one by one। Write down the first one, register addressing, register addressing mode, register addressing mode। अभी हम ये समझेंगे और विथ एग्जाम्पल समझेंगे। Okay, we'll try to understand with an example now। We'll try to understand with an example। The first one is register addressing mode। So we'll be going with register all of you pay attention now। बाद में ये सब 7 आने के बाद सब जंबल होता है, जंबलिंग होती है, कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप ध्यान से देखो। Now in this register addressing mode, I am referring to the register now। I am referring to the register। I am referring to the register। Okay, now I will explain you with the, अभी कुछ भी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ समझना है, आपको सिर्फ समझना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख के देता हूँ मूव ax comma bx, all of you pay attention, this is important। move ax comma bx। now your data is available in the register bx, your data is available in the register bx and that data I have to move into ax। मुझे अगर डायग्राम दिखाना है, प्लीज इमेजिन योर एग्जीक्यूशन यूनिट, जो आर्किटेक्चर ऑफ 8086 से हमने पढ़ा था, नीचे वाला पोर्शन एग्जीक्यूशन यूनिट। आपको नीचे में आपको देखने को मिलेगा, यू हैव ax, bx, cx, dx एंड डॉट 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 मेनी थिंग। ओके, और ax को हमने लिखा था लोअर 8 बिट एंड हायर 8 बिट, वैसे इसको भी था, इसको भी था और इसको भी था। ओके, नाउ if I want to move ax comma bx, it is bx and you know that bx की size is 16 bit because bx में है bl और ah, sorry bl और bh, bl 8 bit, bh 8 bit, दोनों मिला के bx, दोनों मिला के 16 bit। So I am transferring bx। now if I'm using this move x comma bx, that means the content in your bx। So can I say here your operand is present or your data is present? Your operand is present or your data is present। And what is this? This is your register।
रजिस्टर्स AX BX CS DX और मैं ये इंस्ट्रक्शन लिखा है, तो मेरा जो डेटा है वो BX में है, तो my data is here ऑपरेंड कितने साइज का है 16 and that will move into AX. Now before execution of this instruction, this is the status. After execution of this instruction, ये जो ऑपरेंड है, जो डेटा है, वो कहाँ पे जाएगा? AX में जाएगा। तो ये यहाँ से निकल जाएगा और वो यहाँ पे आ जाएगा। Your operand will come here. This is after execution, the scenario after execution और before execution scenario operand आपके BX में। So don't you think I am working on the data? And उसके लिए instructions मैंने ऐसे लिखा है। So this is how the instruction is written for register addressing mode. For register addressing mode. The other example, suppose if I am writing down the same example, add BX, AX या फिर AX, BX जो मैंने लिया BX 16 बिट, AX ये BX का रजिस्टर का साइज 16 बिट, AX का रजिस्टर का साइज 16 बिट। हम ऐसा नहीं लिख सकते add AL, BL, क्योंकि BX 16 बिट है और AL 8 बिट है। ठीक है, एडिशन हो सकता है, 8 बिट और 16 बिट का एडिशन हो सकता है, लेकिन आपको जो स्टोर करना है AL में उसका साइज भी तो 16 चाहिए, लेकिन आपकी साइज कितनी है यहाँ पे AL, दैट इज 8 बिट। सो आई कैनॉट परफॉर्म दिस सच टाइप ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पे सिंटैक्स एरर है, हियर शुड बी AX। देन तो आप मैक्सिमम 16 बिट यूज कर सकते हो, उसमें से अगर आपको 16 नहीं करना है तो 8 बिट करो, देयर इज नो हाउ। ओके, तो मैक्सिमम 16 हम कर सकते हैं, मिनिमम आप 8 कर सकते हो, देयर इज नो हाउ, बट द साइज ऑफ द AX शुड बी 16 बिट बिकॉज BX साइज इज 16 बिट। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, मूव एड AL, BL, हम ये कर सकते हैं, फिर दोनों भी 8 बिट का आ जाएगा, ये हम कर सकते हैं, दोनों भी 8 बिट के आ जाते हैं। ओके, लेकिन ये करके ये हम 8 बिट का नहीं कर सकते। हाँ सर, अगर AL 16 बिट है और BL 8 बिट है, AX अगर हम लोग ऐड AX, BL करेंगे तो चलेगा सर, बिकॉज वो तो 16 बिट है ना। यस ना, चलेगा ना। साइज हमारे ज्यादा से बड़ी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी साइज छोटी है और डेटा बड़ा है। ऐसा चल सकता है कि साइज आपकी बड़ी है और डेटा छोटा है, ये चलता है, लेकिन साइज छोटी है और डेटा बड़ा है, ये नहीं चलेगा। दैट इज इज इट क्लियर? यस सर। यस। सो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के बाद मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो, उसके बाद आपको ये बनाना है। ठीक है, राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में लिखो, हियर द डेटा इज स्टोर इन ए रजिस्टर, here the data is stored in a register and it is referred using the particular register, and it is referred using the particular register, इसका मतलब जो डेटा पे मुझे ऑपरेशन करना है वो डेटा मेरे रजिस्टर में है, इसलिए ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो डेटा पे मुझे ऑपरेट करना है वो डेटा है रजिस्टर में। इट कैन बी AX, BX, CX, कुछ भी हो सकता है रजिस्टर, इसलिए ये मोड का नाम है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ओके, तो दैट इज द वन, एंड यू कैन जस्ट ड्रॉ दिस रजिस्टर, उसमें दिखाओ, आप एक एग्जांपल दिखाओ, मूव AX, BX, आप ऐड AX, B ये भी कर सकते हो, ऐड AX, BX। So these are the different examples which will come under register addressing mode, AX, BX, ये भी लिखो चलेगा। बाद में आप ये भी लिख सकते हो, मूव CL, DL, ये भी कर सकते हो, या फिर मूव CL, DH, ये भी कर सकते हो।
देखो दोनों के साइज 8 बिट है, ये कर सकता हूं मैं। ओके, नाउ हियर एक काम करना, मूव सीएल कॉमा डीएल लिखना है, लिखा है ना, इसके नीचे ना एक काम करो। नाउ आई कैन शो ग्राफिकली, अगर मैं लिख रहा हूं मूव, आपने जो लिखा है मूव सीएल कॉमा बीएच, अगर मुझे ग्राफिकली बताना है ना, फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन यू कैन शो, ग्राफिकली अगर मुझे बताना है तो मैं ऐसा बताऊंगा कि द कंटेंट इन द डीएच, the 8-bit content in the DH is moved into the register given by CL. The content of 8-bit which is stored into DH is moved into the register CL, और दोनों का भी साइज सेम है, 8-bit 8-bit। तो अगर आप ग्राफिकली बताना चाहते हो तो ऐसा भी बता सकते हो, अब ऐसे भी बता सकते हो। ओके, so this is your first one. The second one is immediate addressing mode. I will run this. Second one. सर हाँ सर डेटा ट्रांसफर में हमने अगर सर हमको कॉपी करना है, अगर मूव हाँ, के जगह अगर, तो सर वो उसको ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे? कॉपी करना है। यस नो सर। नो नो, इसमें कॉपी नहीं है, इसमें हम मूव भी कर सकते हैं। देयर इज नो इंस्ट्रक्शन विच इज कॉल्ड एज कॉपी। ओके सर। हाँ, देयर इज नो इंस्ट्रक्शन विच विल कॉपी, देयर इज ओनली इंस्ट्रक्शन विच विल मूव, विच विल मूव द डेटा। ओके, सर एक और डाउट है, सर एक और डाउट हाँ है। हाँ सर हम लोग एक रजिस्टर के हायर 8 बिट्स को दूसरे रजिस्टर के लोअर 8 बिट्स में कर सकते हाँ हैं क्या स्टोर? हाँ, कर सकते हैं ना, यस, नो हार्म। ओके सर। हाँ, द सेकेंड वन इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, अब इसको इमीडिएट क्यों कहा जाता है, विल सी। इसको इमीडिएट क्यों कहा जाता है, विल सी। immediate addressing mode. Okay, we'll see with an example. Suppose I'm writing down move ax comma 0020h. I am writing down, लिखो मत, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के बारे में एक सेंटेंस लिखने के बाद मैं आपको बोलूंगा लिखने को, तब ये एग्जांपल लिखना है। I want to explain you the immediate addressing mode, so I am taking the example to explain you this. So move x comma 002h. Now I am operating on the data and that data को मुझे ट्रांसफर करना है AX में। which data? 0020, and this is a hexadecimal number, 0020. What is the size of zero? हाँ Shobit हाँ sir. हाँ हाँ मैम Sir, बोलिए। this is Anuradha. अच्छा अच्छा, Sir, ठीक है pick ठीक है, up the phone now. आपका फोन आया था मैम, मैं लिख के ले रहा था। ठीक है ठीक हाँ हाँ. है, हाँ ओके। Yeah. 2 मिनट रुकना, 2 मिनट।
मनीष अभी लेक्चर किसका रहता है ये सेकंड? ई अश्विनी मैम। हाँ मैं वही ना, अनुराधा मैम को मैंने वही बताया था, तो बोल रहे थे कि ये सब मेरा लेक्चर है। मैं बोला नहीं सर, नहीं मैम अश्विनी मैम का है और उन्होंने मेरे एडजस्टमेंट किया। ओके हाँ ओके हाँ ठीक है, देखते बाद में। ओके Yes, immediate addressing mode. I was explaining with an example of move x comma 0020. Now the data which I am operating is the data 0020. Now this is called as immediate only because your data is directly mentioned in the instruction. Your data is directly or immediately mentioned in the instruction. That is why it is called as immediate address. पहले वाला कैसा था, मेरा डेटा इंस्ट्रक्शन में ही नहीं मेंशन था, वो इनडायरेक्टली रजिस्टर में था और वो रजिस्टर को मैं बता रहा था, दैट इज AX, BX। तो यहाँ पे मेरा डेटा मैंने डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में ही लिखा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। द अदर एग्जांपल कुड बी मूव सपोज AL, 4929H 492। अभी कोई मुझे बता सकता है AL में क्या जाएगा? कोई बता सकता है AL में क्या जाएगा? आपका डेटा का साइज कितना है? 16 बिट। आपका AL का साइज कितना है? 8 बिट। तो यू कैन टेल मी ना, 4929 मुझे AL में मूव करना है तो क्या होगा? सर एरर आएगा। एरर आएगा, या फिर आप ये बोल सकते हो कि सर मेरा 29 जाएगा AL में, ये 49 नहीं जाएगा। तो ओवरफ्लो, और हाँ, देयर कैन बी ओवरफ्लो, और यू कैन जस्ट से सर AL will have only 29 because it is AL, that is lower 8 bit, that is 29। ओके सर एक डाउट सर। हाँ सर हमारा जो डेटा सर एड्रेस है सर वो तो 20 बिट है, तो सर 4 बिट हेक्साडेसिमल में सर हम लोग उसको क्यों, मतलब ये 5 बिट हेक्साडेसिमल है या होना 4 चाहिए बिट ना, 4 बिट है ना। तो सर 9 को 4 बिट, 2 को 4 बिट, 9 को 4 बिट, 4 को 4 बिट, 4444। सर वो 16 हो गया ना, हमारा हाँ, तो 20 बिट है ना सर एड्रेस। एड्रेस की क्यों बात करेंगे हम डेटा की बात कर रहे हैं ना। हमारा डेटा साइज कितने का होता है? ओके ओके सर, सो वो ओके सॉरी सर, मुझे लगा कि हाँ, 4929 जो एड्रेस में जो डेटा है वो मूव करना है। नहीं 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 नहीं, ये प्योरली मेरा डेटा है, ये प्योरली मेरा डेटा है। ओके सर, समझा सर। यस, दिस इज प्योर डेटा। ओके, so you can write down this example, but before writing down, write down the sentence. Please write down the sentence. Immediate addressing mode, write down the sentence. In immediate addressing mode, comma, an 8 bit or 16 bit of data, is specified as part of the instruction. Is specified as part of the instruction. Is specified as part of the instruction. Is specified as a part of the instruction. Okay, and write down these two examples. Move AX, 0020H. Move, एक काम करो, इसको इजी बना दो, नहीं तो डिफिकल्टी हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा। And write down here, move AL, 08H, 08H। और अगर मुझे ग्राफिकली बताना है तो मैं ये इसके लिए बता रहा हूँ, आप इसके लिए भी कर सकते हो। आई कैन जस्ट राइट डाउन 08H, एक काम करो, 08 लिखना है, ब्रैकेट नहीं लिखना है, 08 लिखना है, ब्रैकेट नहीं लिखना है। ये ब्रैकेट कब लिखना है, ब्रैकेट कब नहीं लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मैं बाद में बताता हूँ। आई एम रिपीटिंग अगेन, पहले मैंने क्या बताया था, पहले ग्राफिक के लिए आपने अपन ने उधर क्या किया था, BX मूव टू AX किया था। आपने कैसे किया था, BX ब्रैकेट में डाला था, इसको मूव किया था AX में। यहाँ पे ब्रैकेट जरूरी है, यहाँ पे ब्रैकेट जरूरी है,
लेकिन अब जब हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 0 अटैच करेंगे और उसको मूव करेंगे AL में, या A8 में ब्रैकेट नहीं आएगा, पहले वाले इसमें ब्रैकेट आएगा। ये ब्रैकेट कब चाहिए, ब्रैकेट कब नहीं चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ, ये आपको मैं बताता हूँ, ओके। लेकिन ये डिफरेंस, यू प्लीज सी द डिफरेंस प्रॉपर। 0 अटैच, AL में मूव, मैं इसके बारे में कर रहा हूँ। अब अगर इसका मुझे बताना है ग्राफिकली, तो ग्राफिकली इसको मैं बताऊंगा 0020H इज मूव्ड इनटू AX। और एक बात यहाँ पे और एक गलत है, और एक गलती हुई है। यहाँ पे मैं जो मूव करूंगा ना AL में ब्रैकेट दिखाना है, AL में ब्रैकेट दिखाना है। और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पे भी AX में ब्रैकेट दिखाना है, AX में ब्रैकेट दिखाना है। Okay. So these are the two instructions, two addressing modes we have seen. Now we'll go with the third one. सर वो मुझे समझा नहीं सर, ब्रैकेट किधर यूज करना है किधर नहीं। पहले वाले पहला जो था रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में, वहां पे हमने ऐसा कुछ ग्राफिकली दिखाया था, तो दोनों तरफ ब्रैकेट दिखाना है। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में ये दो एग्जांपल मैंने लिए थे, ये दो एग्जांपल में, पहले वाले एग्जांपल में आपको 0020H ऐसा एरो दिखा के ब्रैकेट में AX दिखाना है। नीचे वाले एग्जांपल के लिए 08H लिख के एरो दिखा के ब्रैकेट में AL दिखाना है। और मैं आपको बाद में बताऊंगा ये ब्रैकेट कब लिखना है कब नहीं लिखना है। इज इट क्लियर ना? हाँ सर, एक डाउट है सर, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड मतलब हम लोग रॉ डेटा डायरेक्टली मूव कर रहे हैं? हाँ, हमारा जो डेटा है वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में ही मेंशन किया है हमने। ओके, इसका नाम है इमीडिएट। ओके, यस सर। हाँ, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन। आई होप आप लोगों ने लिखा है। नाउ द थर्ड वन, I am going very slowly to make you understand the concepts, okay, and what are the addressing modes। यहाँ पे समझ में आया तो सिर्फ आपको नोट्स को पढ़ना है बस, फटाफट PPT जो मैंने दिया वो आपको पढ़ना है बस। The third one is direct addressing mode. It is a direct addressing mode. Third one, direct addressing mode। यहाँ पे हमको फोकस देना है डायरेक्ट पे। पहले वाला जो एड्रेसिंग मोड था वो उस पे किस पे फोकस देना था, रजिस्टर पे। आप उसको दे दो सर्कल ऐसा, ताकि समझ में आएगा कि मुझे कहाँ पे एम्फेसिस करना है। रजिस्टर को सर्कल कर दो। सेकंड में हमको फोकस करना है इमीडिएट पे, दे दो उसको, दे दो उधर पे सर्कल। थर्ड में डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमको फोकस देना है डायरेक्ट, इसको सर्कल कर दिया। अभी डायरेक्ट क्या है वो हमको देखना है। Now this is important. I will explain you with an example. I want everyone to pay attention now. This is important. कुछ मत लिखो, पहले समझो। एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको ब्रैकेट का भी समझ में आएगा। क्लियर ना? एग्जाम्पल इज मूव AX comma in the bracket 5000H 500H। Now see here, move AX comma 500H. Now here 5000H is not the data. It is not the data. ये डेटा नहीं है, ये डेटा नहीं है। दिस इज नॉट द डेटा। तो ये क्या है? अगर ये स्क्वायर नहीं रहता, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं रहता, तो ये डेटा रहता। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है तो ये डेटा नहीं है। तो ये क्या है? ये है, दिस इज द एड्रेस of the memory location in which your data is present, So I can just write down, or I can just draw the diagram. This is my memory. In this memory, there is a location 500H, and this location
is having my operand, is having my operand. तो जो डेटा मुझे चाहिए वो ये एड्रेस लोकेशन पे है, वो ये एड्रेस लोकेशन पे, एंड यू नो दैट माय एड्रेस लोकेशन, माय एड्रेस इज ऑफ 20 बिट्स, लेकिन ये है 16 बिट्स. तो क्या कहते हैं, योर इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन आपको करना है, जो मैंने बताया था. फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट कैसे करना है, फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट करना है, यू विल बी अपेंडिंग 0 एंड यू विल बी एडिंग विद द ऑफसेट टू गेट द फिजिकल एड्रेस और इफेक्टिव एड्रेस. मैंने इक्वेशन दिया था, आपको बोला था बॉक्स में डालो. ओके, तो यहाँ पे आपका, हाँ, यहाँ पे आपका फिजिकल एड्रेस नहीं आएगा 20 बिट का, यहाँ पे आपका हमेशा आएगा बेस एड्रेस, बेस एड्रेस आएगा. Okay, and here it is 5000H. So this 500H is nothing but the address location in the memory where your operand is stored, and that operand will move into AX. That operand will move into AX. और आपको पता है ये जो हर एक लोकेशन का साइज कितने का होता है? Yes, what is the size of one? 16 bit, sir. No. Address 20. आपका ये एड्रेस लोकेशन जो है, हर एक एड्रेस लोकेशन का साइज कितना होता है? 8 बिट. मेमोरी जो है, ये मेमोरी में हर एक लोकेशन का जो डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी है वो कितनी है? 8 बिट या 16 बिट? ठीक है, आप लोग ढूंढो 8 बिट है या 16 बिट, टेल मी आफ्टरवर्ड. आपको मैंने सब पढ़ाया था स्टार्टिंग में. तो 5000H is the address, and how do you show the address? The address is shown by the square bracket. The address is shown by the square bracket. Now here you have to write down some important thing. Here you have to write down about some important thing. Okay, पहले एक काम करो, you just write down what is the direct addressing mode, then I will give you in writing. Write down. Here the effective address of memory location. Here the effective address of memory location. Here the effective address of memory location where operand is present. Where operand is present is written directly in the instruction. Is written directly in the instruction. I am repeating again. Here the effective address of memory location where operand is present, या फिर stored बोल सकते हो, is written directly in the instruction. Is written directly in the instruction. यस, उसके बाद मूव AX, ये लिखो और ये डायग्राम बनाओ ताकि आपको समझ में आए. ये डायग्राम बनाओ ताकि आपको समझ में आए. अभी आप उसको ग्राफिकली कैसे बताओगे या फिर फिगर में बताना है तो हियर यू विल शो इन दिस मैनर. नाउ 5000H, इसका जो कंटेंट है वो मूव हो जाएगा AX में. तो ये ब्रैकेट जो बताता है ना, इट शोज नाउ द एड्रेस. नाउ 5000 इज नॉट ट्रीटेड एज अ डेटा, बट दिस स्क्वायर ब्रैकेट में बताता है कि वो ये एड्रेस लोकेशन में जो डेटा है वो मूव होगा AX, वो मूव होगा AX. That will move into AX. और यहाँ पे भी हम सिर्फ AX नहीं लिख सकते, हम उसको ब्रैकेट में लिखते ताकि वो AX के जो एक्यूमुलेटर है या फिर AX का जो कुछ पर्टिकुलर एड्रेस है या फिर AX में हमको डायरेक्टली AX में जाने वाला है वो, तो यू हैव टू शो हियर इन द ब्रैकेट. बट यहाँ पे कंपलसरी देयर इज अ स्क्वायर ब्रैकेट. हियर कंपलसरी इट इज स्क्वायर. सो यू हैव अंडरस्टूड वेयर आई हैव टू write down, where I have to draw the square bracket and कहाँ पे मुझे नहीं करना है. Okay, so I think you have understood this. So this is a direct addressing mode. This is a direct addressing mode. We'll go to the next now.
register indirect addressing, register indirect addressing mode, register indirect addressing mode. Now write down the fourth one, register indirect addressing mode, और इसको सर्कल करो, ये आपका है फोर्थ वाला, ये आपका फोर्थ वाला. Register indirect addressing, register indirect addressing. First I will explain you with an example, then we will write down. Example is move ax comma, here now bx square bracket move ax comma in the bracket bx. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मेरा जो डेटा है वो कहाँ पे है, मुझे ढूंढना है. ओके, और ये दिया है मुझे, और ये देखो रजिस्टर इनडायरेक्ट, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड पढ़ा आपने, लेकिन ये रजिस्टर इनडायरेक्ट है, तो मेरा डेटा इनडायरेक्टली मुझे देखना है कहाँ पे, वो कैसे देखना है. ये bx, फॉर एग्जांपल सपोज आपका bx की वैल्यू है, सपोज आपकी bx की वैल्यू है 4895, सपोज 4895h. आपका जो रजिस्टर है ना ax bx dx ax bx, सपोज bx में आपका सपोज ये 4895 है, लेकिन ये 4895 मेरा डेटा नहीं है. ये क्या बता रहा है 4895? ये बता रहा है बिकॉज ये देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ये बता रहा है कि 4895 इज द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन. तो ये जो आपकी मेमोरी लोकेशन है, ये आपकी मेमोरी है, और ये मेमोरी लोकेशन में ये मेमोरी कौन सा लोकेशन 4895h, ये मेमोरी लोकेशन में मेरा ऑपरेंड है, और वो ऑपरेंड मुझे AX में मूव करना है, वो ऑपरेंड मुझे AX में मूव करना. डोंट यू थिंक नाउ दिस इज इनडायरेक्ट? यस, AX में 4895, तो ये मैंने ये बनाया, ये रजिस्टर, ये है मेरे रजिस्टर, ये रजिस्टर है. तो ये 4895 एक्चुअली मुझे इनडायरेक्टली वो ये एड्रेस बता रहा है मेमोरी का 4895, तो फिजिकल एड्रेस में होगा 48950. तो यहाँ पे जो डेटा है दैट इज मूव इनटू ए, दैट इज मूव इनटू ए. और ग्राफिकली आप कैसे बताओगे, bx स्क्वायर ब्रैकेट में इज मूव इनटू ए, इज मूव इनटू ए. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. तो प्लीज राइट डाउन, हाँ प्लीज राइट डाउन, हाँ यू राइट डाउन. सर मतलब ये पॉइंटर्स जैसा है. कैसे जैसा है? हाँ पॉइंटर, यस, इट विल पॉइंट टू दैट पर्टिकुलर bx में जो वैल्यू है, bx की जो वैल्यू है दैट इज पॉइंटिंग टू द मेमोरी एड्रेस लोकेशन जहाँ पे मेरा ऑपरेंड स्टोर है. यस, दैट इज इट इज यूज्ड एज अ पॉइंटर. So write down, in this addressing mode, the data is stored in the register, and the effective address is calculated by using the offset register. अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ. And the effective address is calculated by using the offset register. सर ऑफसेट या ऑफ स्टेट? Offset, OFFSET, offset register. Full stop. आगे में लिखो, the offset address of data is in
the offset address of data is in either BX or SI. The offset address of data is in either BX or SI or DI register okay. तो आपका ये जो ऑफसेट एड्रेस है that can be in BX or SI. SI stands for source index, or DI, that is DI is destination index. So the offset address of data is in either BX or SI or DI register. Full stop. The default segment is either BS or ES. The default segment is either BS or ES. Sir, is either DS. DS stands for data segment, or ES stands for extra segment. अभी ये जो मैंने लिख के दिया ना, उसके लिए एक एग्जांपल लिखो. अभी मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, और जैसे लिख रहे हो वैसे लिखो ताकि आपको पिक्चर पूरा क्लियर हो जाए. ओके, आपको पिक्चर पूरा क्लियर हो जाए. Write down example, and the example is move CX, BX. Move CX, BX. Now इतना लिखने के बाद आगे लिखना है आपको. अभी ये बस ये इंस्ट्रक्शन है which will come under the register indirect addressing mode. इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखो क्या है. Your effective address is BX. Your effective address is BX. Okay, and your base address आप ऐसे लिखो, इफेक्टिव एड्रेस ब्रैकेट में EA इक्वल्स टू BX, बेस एड्रेस ब्रैकेट में BA, बेस एड्रेस इट इज DS मीन्स डेटा सेगमेंट into 16 to the power to the base 10. कोई बताएगा इसका मतलब? Sir, 16 in decimal. Yeah, 16 in decimal multiplied by DS. Can I say this is nothing but you are appending 0 to the data segment? जो डेटा सेगमेंट मेरा 16 बिट का होता है, मुझे फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना है, तो मैंने बताया था कि that your data segment has to be appended with 0. Appending of 0 is nothing but you are multiplying with the 16 in decimal. You are multiplying 16 with the decimal. उसके बाद लिखो therefore memory address, that is MA, या फिर स्लैश, उसी का मतलब होता है फिजिकल मेमोरी एड्रेस MA या फिर फिजिकल मेमोरी एड्रेस is equals to, yes, tell me the formula. Can I say it is base address plus effective address EA, effective address EA, that is offset address. Now this effective address is also called as offset address.
Now see here, how do you get the memory address MA? That is the physical address. Physical address 20 bit. How do you get? You have to multiply 16 decimal with the data segment. और आप मेमोरी के कौन से सेगमेंट में काम कर रहे हो? That is default either data segment और एक्स्ट्रा सेगमेंट, जो मैंने आपको सेंटेंस में लिख के दिया है। तो आपके बेस एड्रेस क्या क्या हो सकते हैं? आपके बेस एड्रेस हो सकता है BX या फिर SR या फिर DI। तो आपने जो यहाँ पे BX लिखा है ना, यहाँ पे आप SI भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप DI भी लिख सकते हो। तो हम ये तीनों में से ले सकते हैं। तो ये तीनों ये यहाँ पे जो लिखेंगे वो क्या होगा? वो होगा हमारा ऑफसेट एड्रेस। तो ये देखो मैंने ऑफसेट एड्रेस लिखा है, या फिर उसको इफेक्टिव एड्रेस बोल सकते हो। तो वो क्या होता है? BX। बेस एड्रेस क्या है? यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट DS लिया है, डेटा सेगमेंट। तो मुझे पता है डेटा सेगमेंट 16 बिट का, उसको मुझे 20 बिट में चाहिए, तो अपेंड 0 या फिर मल्टीप्लाई बाय 16 डेसिमल। ये होने के बाद आई विल से मेमोरी एड्रेस और फिजिकल एड्रेस इज नथिंग बट बेस एड्रेस BA, हाँ, बेस एड्रेस प्लस इफेक्टिव एड्रेस, बेस एड्रेस प्लस इफेक्टिव एड्रेस। तो कैन आई से आई विल बी गेटिंग 20 बिट ऑफ फिजिकल एड्रेस, 20 बिट ऑफ फिजिकल एड्रेस। ओके, नाउ आफ्टर दैट कैन आई राइट डाउन? ये होने के बाद मैं ऊपर का रब कर रहा हूं, ये जो मैंने रेड में लिखा है आपको लिखना है। इसके बाद मैं देखो क्या लिख रहा हूं। इसके बाद कैन आई राइट डाउन नाउ? कैन आई राइट डाउन? दैट इज MA is moved into CX is moved into, देखो ये move CX, BX, ये सब होने के बाद कैन आई से MA मीन्स मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस में जो कंटेंट है दैट इज मूव इनटू CX। और कैन आई से ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ CL में डेटा जो गया है वो गया है MA से, और ये और मैंने ये लिखा है CL, लेकिन CH में डेटा गया है। ये कोई बता सकता है? मैं यहाँ पे क्या लिखूं? जो बताएगा ही विल गेट चॉकलेट। यहाँ से नहीं, वर्चुअल चॉकलेट नहीं, जब कॉलेज स्टार्ट होगा तब चॉकलेट दूंगा। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से बताओ, कोई बता सकता है? अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी द आंसर। अगर ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आया तो यू विल बी एबल टू गिव मी द आंसर हियर। आई विल रिपीट अगेन, बाद में मुझे मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर दो। आई एम गोइंग स्लोली। एग्जांपल है मेरा मूव CX, BX। तो BX में जो डेटा है वो है 16 बिट का, लेकिन वो 16 बिट ऑफ डेटा इज यूज एज अ मेमोरी एड्रेस। लेकिन 16 बिट का मेमोरी एड्रेस नहीं चाहिए मुझे 20 बिट का चाहिए। आपको पता है 20 बिट का मेमोरी एड्रेस कैलकुलेशन कैसे करना है? वही मैंने यहाँ पे लिखा है। वो कैलकुलेशन कैसे है? मेरा इफेक्टिव एड्रेस या फिर ऑफसेट एड्रेस बताता है BX वाला, BX बताता है, ये BX। बाद में मेरा जो बेस एड्रेस है, मेरा डेटा सेगमेंट जहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि मैंने बताया था मैं डेटा सेगमेंट ले सकता हूँ या फिर एक्स्ट्रा सेगमेंट ले सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट मैंने लिया है डेटा सेगमेंट, जहाँ पे मेरा डेटा है। वो डेटा सेगमेंट का मेरा बेस एड्रेस, तो दिस इज द बेस एड्रेस, बट आई वांट द बेस एड्रेस इन द 20 बिट। So multiply, you append 0 on the LSB, और you multiply by decimal 16। ये मैंने किया। बाद में मुझे मेमोरी एड्रेस मिला या फिर फिजिकल एड्रेस मिला, जो है बेस एड्रेस प्लस इफेक्टिव एड्रेस या फिर ऑफसेट एड्रेस। ओके, ये होने के बाद मैं अभी ग्राफिकली आपको बता रहा हूँ। मैं ऐसा लिख सकता हूँ MA, अभी जो MA जो है, जो मुझे फिजिकल एड्रेस मिला है, उसमें जो कंटेंट है दैट इज मूव्ड इनटू CX। या फिर मैं बोलूंगा इन टर्म्स ऑफ CL एंड CH कि CL में जो भी कंटेंट गया वो MA क्या गया। तो मुझे बताओ यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा जिसका कंटेंट CH में जाएगा? इफ यू आर BA, हाँ, BA, Next memory. यस, Next memory address. तन्वी ने बोला ना,
Tanvi, you have said? No, sir. Sachi. हाँ साची साची हाँ सर हाँ हाँ साची तुमने बताया ना नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस। हाँ हाँ हाँ। अभी हाँ आपने बराबर बताया। तो मुझे नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस बताओ इन टर्म्स ऑफ MA। You are right, Sachi, but I want the answer in the form of MA. In terms of MA, it will be 1 plus MA. yes, you are right. MA plus 1. So Sachi will get chocolate. Sachi, मेरे से chocolate लेना है, भूलना नहीं. So this is the answer. MA plus 1. MA plus 1. क्योंकि आपको पता है ये देखो क्या है मैं बता रहा हूँ अभी इसको और मैं बताता हूँ। Shall I rub this portion? मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज मेरा BX है सपोज 4895H। देखो ये समझने के लिए टाइम क्या एक दो लेक्चर किए तो भी दैट इज नॉट अ लॉस। आई विल बी हैप्पी टू स्पेंड मोर टाइम ऑन दिस। नो देयर इज नो प्रॉब्लम। सी BX is suppose 4895. Suppose it is 4895. Okay. Now I want to calculate the physical address. Okay. Now here 4895. Your effective address is BX, so that is 4895. And your base address is suppose the DS. Okay, DS. Okay. And for example, your DS it is of 16 bit. Suppose your DS value is suppose 000 and one more 0 you will append so that it becomes 20 bits. पहले DS क्या था मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज मेरा डेटा सेगमेंट है वो डेटा सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है 5000 से और DS को पता है आपको पता है कि 16 बिट है इसलिए वो 5000 ही ले सकता है। लेकिन मेरा फिजिकल मेमोरी जो एड्रेसिंग है वो 20 बिट का है तो आई विल अपेंड 0 so that it becomes 20 bit. Now how do you calculate the physical address? BA plus EA. Where is your BA? BA is now 50,000 plus EA. EA is what your offset address, that is BX. So BX is offset address. So I will add 4895. It comes to be 59845. तो कहने से ये एड्रेस लोकेशन पे आपका डेटा है। कहने से एट दिस मेमोरी एड्रेस लोकेशन आपका डेटा है। तो कहने से ये आपका ऑपरेंड है। ठीक है ना। अभी ये मैं बता रहा हूँ मैं इधर भी रब करता हूँ। I will rub this now and I will show properly now. This is the base address of data segment. This is your offset and this is your actually you will say this is memory address या फिर physical address. मेमोरी एड्रेस या फिर फिजिकल एड्रेस। अब ये मैं बताऊंगा आपको मेमोरी एड्रेस लोकेशन के हिसाब से। अब ये आपका मेमोरी है मैं ऐसा करता हूँ ताकि आपको लगे कि मेमोरी लोकेशन बड़ी है। ठीक है यहाँ पे भी वैसे ही है। ठीक है अब यहाँ इसमें मेमोरी लोकेशन से मैंने ये लिया है डेटा सेगमेंट। ये है मेरा डेटा सेगमेंट। ठीक है अभी मैं बताऊंगा कि मेरा मेमोरी एड्रेस लोकेशन बेस एड्रेस लोकेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैं बोलूंगा ये मेरा बेबी ये स्टार्ट हो रहा है 50000H ये वाला क्योंकि मेरा डेटा सेगमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना बेस एड्रेस। और मेरा ऑफसेट जो मुझे इसको ऐड करना है इसको कितना से ऐड करना है। अभी मैं जब प्लस ये वाला 49 ये मेरा ऑफसेट 4895H ये जब मैं इसको ऐड करूंगा तो एक्चुअली मैं जाऊंगा कहाँ पे मैं जाऊंगा सपोज यहाँ पे मैं जाऊंगा यहाँ पे और ये मेमोरी एड्रेस लोकेशन है 54895H। अब देखो मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा। मुझे बेस एड्रेस चाहिए और ऑफसेट एड्रेस चाहिए। ऑफसेट एड्रेस आपका BS देगा और बेस एड्रेस मिलने के लिए आपको डेटा सेगमेंट उस पर अपेंड करना है 0
ताकि वो फिजिकल एड्रेस में आ जाए। और इसको मैं जब इसको ऐड करूंगा तो एक्चुअली मैं यहाँ पे पहुंचूंगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा ऑपरेंड, यहाँ पे मेरा ऑपरेंड, और मुझे क्या करना है, ये ऑपरेंड को कहाँ पे लेके जाना है, AX में लेके जाना है। ये ऑपरेंड को कहाँ लेके जाना है, AX में लेके जाना है, सॉरी CX में लेके जाना है, क्योंकि मेरा ये प्रॉब्लम क्या था, मूव CX, BX, यही लिखा था ना, सॉरी, हाँ, मूव, मेरा इंस्ट्रक्शन क्या था, मूव CX, BX, यस। तो ये उठा के मुझे CX पे डालना है, बराबर है ना। तो ये देखो CX में क्या जाएगा, A में जाएगा, मेमोरी एड्रेस लोकेशन। ये देखो मेमोरी एड्रेस लोकेशन फिजिकल 54895, 54895, उसमें जो डेटा है वो लेके मुझे इधर डालना। अभी आपको पता है CL का साइज कितना है, 8 बिट, CH का साइज कितना है, 8 बिट, CX का साइज कितना है, 16 बिट, और आपका एक लोकेशन हैंडल कितना कर सकता है, 6 बिट, 6 बिट। इसलिए ये ऑपरेंड में, ये जो यहाँ पे ऑपरेंड है वो 6 बिट का है, वो जाएगा CL में, तो ये आपका MA है। और इसके बाद का जो नेक्स्ट एड्रेस लोकेशन है वो सपोज ये है, ये है, और ये एड्रेस लोकेशन है +1। जब करूंगा तो ये होगा 54896, 54895, 54896H। यहाँ पे मेरा नेक्स्ट हायर बिट यहाँ पे जाएगा। तो ये है, ये सपोज ऑपरेंड लोअर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑपरेंड लोअर, ऑपरेंड लोअर, और ये मैं लिखता हूँ ऑपरेंड हायर। तो लोअर 8 बिट मेरा जाएगा CL में, और ऑपरेंड हायर बिट जाएगा, और ऑपरेंड हायर बिट का मेमोरी एड्रेस लोकेशन क्या है, MA+1, MA+1। ये देखो इसके नेक्स्ट वाला, ये जाएगा CL में, ये सॉरी CH में। तो ये जाएगा CL और ये जाएगा CH। तो ये पूरा आपका डायग्राम, ये आपका क्या है, ये आपका मेमोरी। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, आई होप दिस इज क्लियर। किसी को डाउट है तो पूछो, किसी को डाउट है तो पूछो। सर वो 16 से मल्टीप्लाई करके सर वो 20 बिट कैसे होता है सर, वो नहीं समझा। हाँ, तो फिर एक काम करो, डू नॉट अंडरस्टैंड इन दैट फॉर्म, यू जस्ट अंडरस्टैंड जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, ओके। यू हैव टू अपेंड ओनली 1 0, ओके, यू रिमेंबर हियर 5,000 का एक अपेंड होने के बाद इट बिकम्स 50,000, एंड दैट 50,000 इज योर बेस एड्रेस, ओके। So you just remember appending of 0. Actually वो कहते हैं you multiply the 5,000, you multiply the 5,000 with the decimal number 16, या फिर multiply with 10 hexadecimal. You multiply by 10 hexadecimal. ये साइड में कहीं तो भी लिख के रखो, मल्टीप्लाई बाय 16 इन डेसिमल, और फिर मल्टीप्लाई 10 इन हेक्साडेसिमल, तो एक्चुअली हम जब अपेंड कर रहे हैं 0, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 हेक्साडेसिमल कर रहे हैं, ओके। ये लीव अपार्ट दिस 16, यू टेक दिस। किसी को डाउट है तो पूछो मुझे, अदरवाइज विल प्रोसीड। इट्स 11:55। सर एक डाउट है सर। हाँ बताओ। सर जब भी हम लोग ये कमांड सर मूव CX, BX, सर तो BX ऑफसेट एड्रेस को पॉइंट करता है, तो सर हाँ, बेस एड्रेस हम लोगों को कैसे मिल रहा है सर, मतलब वो क्लियर नहीं हुआ सर। क्या नहीं क्लियर हुआ सर ऑफसेट एड्रेस हम लोग स्पेसिफाई करेंगे ना सर कमांड में, हाँ, लेकिन सर बेस एड्रेस ये सब इंटरनल कैलकुलेशन है, ये सब इंटरनल कैलकुलेशन है। आपको मैंने इंटरनल कैलकुलेशन बताया, ये प्रोसेसर काम करेगा। आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन लिखना है, BX की वैल्यू लिखना है, ये कन्वर्ट करना, ऑब्जेक्ट को ऐड करना, फिजिकल एड्रेस मिलना, बाद में MA को CL में डालना, बाद में MA+1 को CH में डालना, ये प्रोसेसर का इंटरनल ऑपरेशन जो मैंने आपको बताया। लेकिन इंस्ट्रक्शन छोटा लिखना है, मूव CX, इन द ब्रैकेट BX,
ये सब इंटरनल ऑपरेशन होंगे और आपके CS में MA जाएगा या फिर CL में MA और CH में MA प्लस। आई होप यू अंडरस्टैंड। Yes, sir. Any more questions you have? Shall we proceed further or shall we stop? क्योंकि there is no meaning in hurry. मैं फटाफट पढ़ा के निकल सकता हूँ और फटाफट वो आपको टैगम का प्रोग्राम बता के भी जा सकता हूँ। ओके, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग ताकि आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो। Shall I take 2 more addressing modes and wind up here, or do you want to stop me here? Stop, sir. Next Okay, lecture में लेते हैं. Okay, no problem. We'll stop here. Parmeshwari is there. She can take the attendance. सर परमेश्वरी मैम नहीं है, लेकिन आज ट्रैवल कर रही है तो ले लेते हैं हम. तुम ले लो. भुवना अटेंडेंस ले लेना. हाँ ओके. अच्छा 2 मिनट. Yes, sir. मैंने ना PPTs और इसके नोट्स कुछ डाले हैं टैगम के. प्लीज गो थ्रू दैट. ठीक है. और मैंने जो लास्ट टाइम जो प्रोग्राम लिख के दिया था दैट इज नॉट एग्जीक्यूटिंग बिकॉज the version of TASM what we are using is not compatible with that particular instruction. तो वहाँ पे हमको minute changes करने हैं. वो minute changes मैंने आपके study material में किया है. तो आप लोगों को कोई अगर आप घर पे कोशिश करना चाहते हो तो वो सेम कोड एडिशन ऑफ 2 8-bit नंबर्स या फिर 16-bit नंबर्स वो सेम कोड लिखो टैगम में और एग्जीक्यूट करो. देन यू विल सी द चेंजेस हैपनिंग इन द रजिस्टर एज वेल एज इन द फ्लैग. तो ये और डिटेल में मैं नेक्स्ट लेक्चर में देता हूँ क्योंकि उसके पहले मुझे ये कंप्लीट करना जरूरी है. तो यहाँ पे मैंने आपको 4 लिए है, बाकी के और 3 बाकी है. एड्रेसिंग मोड्स 3 एड्रेसिंग मोड्स होने के बाद फिर हम तुरंत टैगम में स्विच करेंगे और टैगम में मैं वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट आपको करके बताऊंगा. बट इफ यू वांट यू कैन डू बाय योरसेल्फ. सिर्फ उसमें मैनुअल चेंजेस करने वो मैंने आपको स्टडी मटेरियल में भेजा. ओके. हाँ अटेंडेंस ले लो. Roll number 1 present. 2 present. 3 present. 4. Roll number 4 absent. 5